Hello everyone, this is an MHCT revision class and this video will focus on Constitution of India and polity. आप लोग सबको पता है कि polity is going to be a very important topic for the MHCT exam, so we'll cover some important portions of it. Okay, so let's start with part one. Part one में article one आपको याद रखना है कि it is name and territory of the union. इसमें ही वो word mention है India, that is भारत, जो काफी controversial word हुआ था, that is mentioned in Article 1 of the Constitution. Okay. Apart from that, you have to remember Part 2 is citizenship. Article 5 to 11 is Part 2. Okay. So 5 discuss about at the commencement of the Constitution, which is obviously 26th Jan 1950. किसको किसको citizenship मिलेगी वो grounds आपके Part 5 में है. Very importantly, uh, persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens is Article 9. So this is basically the ground of single citizenship. अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, राइट? नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फंडामेंटल राइट्स. राइट, लेट मी जस्ट स्क्रॉल थ्रू दिस और आई कैन यूज द इंडेक्स ऑल्सो, आप बस ध्यान से सुनते रहना. आर्टिकल 12 defines what state is, because fundamental rights are only enforced against the state. ओके, तो उसके लिए हमें स्टेट का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है. एंड स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द एजेंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द एजेंसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, local government, all the agencies of local government, as well as other authorities. अदर अथॉरिटीज में कौन कौन सी अथॉरिटीज आती हैं जिनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल है या स्टेट उनको उनमें ओनरशिप काफी है स्टेट की, या फिर स्टेट फंडिंग करता है उस बॉडी की 100% तरीके से. एंड इट कैन अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर एग्जाम्पल PSUs आर ऑल्सो स्टेट. Okay. Uh, on the other hand, BCCI has been declared as not a state organization. Similarly, NCRT को भी state नहीं माना जाता है. So, couple of important things you have to remember. Okay. Article 13 is judicial review. Please remember this. Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. तो अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो आप चैलेंज कर सकते हो. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो. सो आर्टिकल 13 इज जुडिशियल रिव्यू. प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपर्ली. ओके. एंड आर्टिकल 13 ऑल्सो डिफाइंस लॉ which includes rules, regulations and even customs. Customary law जो होता है उसको भी आर्टिकल 13 में कवर किया गया है. ठीक है. The first part of proper fundamental rights is right to equality, which is from 14 to 18. Article 14 to Article 18 covers right to equality. Article 14 is granted to everyone, but as compared to 14, 15 and 16 are only granted to citizens. Okay, please remember this. So Article 14, अगर आप अब let's quickly go to this part and let's go through the language of a couple of articles. ठीक है. Yes. So you can see Article 14 is given to person, so it's given to everyone. Equality before law is basically equality. Equal protection of laws is equity, the principle of equity. है ना, कि आप अनइक्वल्स को इक्वल की तरह ट्रीट नहीं करोगे, जिन जो गरीब हैं उनको आप अमीरों की तरह ट्रीट नहीं करोगे. So you are supposed to treat different people as different people, and that is equity, right? Article 15 basically prohibits discrimination on 5 grounds: religion, race, caste, sex, place of birth. 5 ground. Why मैं 5 पे फोकस कर रहा हूं? बिकॉज जब आप आर्टिकल 16 पे आओगे, आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटी की क्वालिटी. यहां पर 7 ग्राउंड्स हैं, यहां पर 2 नए ग्राउंड्स एडेड है. सो डिसेंट एंड रेसिडेंस, these are 2 additional grounds which are not there in Article 15. Okay. So Article 15 पे अगर हम नजर डालें तो it basically prohibits discrimination on 5 grounds. It also says कि आप इन grounds पे किसी भी तरह की discrimination नहीं कर सकते हो. Okay. You cannot stop a person from accessing public place. ठीक है. You cannot
stop any person from accessing public place owned by government, right? तो A और B में यही difference है. These are public place owned by private parties. These are public place owned by government bodies, right? However, 3, 4, 5 and 6 are exceptions to Article 15. बेसिकली इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पर रिजर्वेशन या स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट बना सकती है. किसके किसके लिए? फर्स्ट इज वुमेन, सेकंड इज चिल्ड्रन, third is any socially and educationally backward classes, which includes OBC, scheduled caste, and scheduled tribes, right? And same in तीनों classes के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए भी आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, राइट? And clause 6 is governing EWS. So, women, children, SEBC, scheduled caste, scheduled tribe, and EWS. These reservations and these special provisions are allowed under Article 15. Now, quickly, let's go to Article 16. This is talking about government jobs. ठीक है? तो डिसेंट एंड रेसिडेंस, ये दो ग्राउंड्स याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा एडेड है 16 में, विच आर नॉट देयर इन 15, राइट? ठीक है. लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया डाल सकते हो कुछ कुछ जॉब्स के लिए. दैट्स नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16. एक्सक्यूज मी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप रिजर्वेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स में और पोस्ट्स में रिजर्वेशन के लिए भी प्रोविजंस बना सकते हो इफ यू थिंक अ पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके. Now let's quickly go on to important parts. यहाँ EWS भी added है. Okay. Let's quickly come to Article 16, which abolishes untouchability in any form. Please remember, untouchability has not been defined under the Constitution of India. Okay. And Article 18 prohibits the state from granting any title. However, military or academic titles are allowed. मिलिट्री टाइटल आपको पता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और आपके ब्रिगेडियर, ठीक है, कर्नल, इन सब के पोस्ट को आप बोलते हो. एकेडमिक डिस्टिंक्शन में ऑब्वियसली यू कैन गिव डॉक्टरेट्स एंड ऑल, राइट? सो दोज आर नॉट काउंटेड एज टाइटल्स. टाइटल्स में हमने क्या क्या प्रोहिबिट किया है? राजा, महाराजा, फ्यूडल लॉर्ड्स, सर, इस टाइप के टाइटल्स आप नहीं दे सकते एज अ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. भारत रत्न and Padma awards are not considered titles, they are considered awards. However, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप इनको भी अपने नाम में नहीं लगा सकते, राइट? स्टेट कैन गिव देम बिकॉज दीज आर नॉट टाइटल्स. भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर अवार्ड्स, रिकॉग्निशन है, ये टाइटल नहीं है. ओके, दैट इज वाई स्टेट कैन गिव देम, राइट? ओके. अगर आप फॉरेनर हो तो भी आप इन टाइटल्स को किसी कंट्री से नहीं ले सकते हो इफ यू आर वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. ओके. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. एंड लास्ट क्लॉज में ये बोला गया है, इफ यू आर एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट प्रेजेंट फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, तो आपको उस प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आप वो गिफ्ट, इमोल्यूमेंट और ऑफिस नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे. ठीक है. सो दैट्स 14 to 18, दैट्स इक्वालिटी. Apart from that, let's come to next part, which is Article 19, but most importantly, right to freedom, which goes from Article 19 till Article 22. Article 19 is freedom of speech. A, B, C, D, E, and G. F was right to property. Right to property has been omitted. कैसे omit हुआ है? यहाँ आप check कीजिए. It has been omitted by the 44th Amendment Act. Please remember this, right? And it has been moved to Article 300A. Right to property is only a constitutional right or only a legal right now. It's not a fundamental right, and it's given under Article 300A. ओके. सो एक एक करके देख लेते हैं. ए, फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकंड इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, थर्ड इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिफ्थ इज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, एंड जी इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन. Okay, these are the articles, these are the rights recognized under Article 19. Let's quickly go to Article 20. Article 20 is protection in respect of conviction of offenses. So ये याद रखना, Article 20 is only given to people convicted or accused of crimes, right? तो civil laws में ये apply नहीं होता है. Please remember this. Okay. Now
इसमें दो तीन चीजें नोट करने वाली हैं। जैसे फर्स्ट राइट जो है इट्स बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जैसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लॉ का नहीं होगा, क्रिमिनल लॉ का। तो अगर आज मैंने कोई चीज को क्रिमिनलाइज किया है, तो आई कैन ओनली पनिश पीपल हु हैव डन दैट एक्ट ईदर टुडे और आफ्टर टुडे। So if someone has done that act before today, I cannot punish them. Okay. However, this does not apply on, uh, for example, civil laws, and these does not apply अगर वो law आपके prisoner के benefit के लिए है, right? ये याद रखिएगा। Second is called obviously double jeopardy doctrine। ठीक है। प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश आप दो बार नहीं हो सकते सेम ऑफेंस के लिए। दो बार प्रोसिक्यूट, एक बार पनिश हो सकते हो। एक बार प्रोसिक्यूट, दो बार पनिश हो सकते हो। ये याद रखना। ओके। ठीक है। थर्ड इज कॉल्ड ऑब्वियसली राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते हो। आप किसी और के अगेंस्ट विटनेस बन सकते हो, या फिर कोई और आपके अगेंस्ट विटनेस बन सकता है। सो व्हेन यू आर कंपेल्ड टू बी अ विटनेस टू योर क्राइम, that is when it is not allowed. Okay. So first is ex post facto law or retrospective effect of criminal laws. Second is double jeopardy, and third is right against self-incrimination. And Article 20 is obviously life and personal liberty. इसमें कुछ कुछ rights आपको पता होना चाहिए। Right to shelter, okay, very important case. Olga Tellis is the name of the case. Right to go abroad is Menaka Gandhi versus Union of India, okay. Right to privacy is K.S. Puttaswamy versus Union of India, ठीक है। Right to information again is just give me a second, guys. Yes. Okay. हाँ। Right of prisoners is Husnaira Khatun versus Union of India, or right to prisoners, Husnaira Khatun was India's first PIL, uh, admitted by Justice P.N. Bhagwati. He is also known as the father of PIL in India. Okay, so couple of the cases you have to be sure of. मैं एक बार cases की list वापस discuss कर दूंगा after completing all these fundamental rights. 21A, ठीक है, it's right to education 6 to 14 years के बच्चों के लिए it has been inserted by the Amendment Act, which was the 86th Amendment Act 2002. Okay, ठीक है। Let's quickly go to Article 22. यहाँ पर तीन rights recognized है against arrest and detention. A person who has been detained, first he has to be known grounds of arrest. That's the first right. जब arrest कर रहे हो तो आप उनको grounds बताओ क्यों arrest कर रहे हो। Second, if you are arresting them, they have right to be consulted by a legal practitioner, lawyer of his choice. That's second right. And third right is if someone has been arrested by the police officer, they have to be presented before the magistrate within 24 hours. However, इस 24 घंटे में आप जर्नी का टाइम एक्सक्लूड करते हो। ठीक है। सो एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी 24 आवर्स के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 23 घंटे से किसी को जेल में रखा है, उसको मैंने जेल से निकाला, मैं मैजिस्ट्रेट के पास उसको ले जा रहा हूँ, मुझे ले जाने में 3 घंटे लग गए, वो 26 घंटे हो गए। सो इट्स मोर देन 24 आवर्स, बट यू एक्सक्लूड द 3 आवर्स बिकॉज दैट्स टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। ठीक है। सो आपका राइट वायलेट नहीं हुआ है। हाउएवर, दो लोगों को ये राइट्स नहीं मिलते हैं। फर्स्ट, एक एनिमी एलियन को ये राइट नहीं मिलता है। एनिमी एलियन का मतलब, इफ इंडिया इज एट वॉर विथ चाइना, चाइना इज आवर एनिमी, एंड एवरी चाइनीज सिटीजन विल बी कंसिडर्ड एनिमी एलियन। तो इनको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। एंड सेकंड, अगर आप किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट हुए हो, तो आपको ये राइट नहीं मिलेंगे। इंडिया में दो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर देयर। फर्स्ट इज यूएपीए एंड सेकंड इज एनएसए, National Security Act, and Unlawful Activities Prevention Act, right? So that's Article 22 for you. Let's quickly come to next part, which is right against exploitation. इसमें दो articles हैं. Article 23 prohibits human trafficking and forced labor, including begar. Okay. However, एक्सेप्शन इज कंपलसरी सर्विस। गवर्नमेंट आपके ऊपर कंपलसरी सर्विस फोर्स कर सकती है। जैसे मिलिट्री, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होती है, या फिर कम्युनिटी सर्विस काफी लोगों को दी जाती है, पीपल हु हैव कमिटेड स्मॉल स्मॉल क्राइम्स। सो दैट्स एन एक्सेप्शन। ओके। सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, दिस इज चाइल्ड लेबर का प्रोविजन। बट यहां पर याद रखना, इट्स बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड इट टॉक्स अबाउट हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। बट
नॉन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में भी चाइल्ड लेबर इज बैंड, बट दैट्स बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, वो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, next part is right to freedom of religion, which is 25 to 28. So article 25 is right to religion of an individual, एक इंसान का राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का राइट इंडिविजुअल का इसमें दिया हुआ है। ठीक है। ओके। एंड 26 इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट इंडिविजुअल बट अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस ट्रस्ट के क्या रिलीजियस राइट्स हैं। तो चार राइट्स आइडेंटिफाई हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हो अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए किया है। ओके। सेकंड, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, इमूवेबल या मूवेबल, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, और आप उस एडमिनिस्टर कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। 27, आर्टिकल 27 इज फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स मांगती है जिसके सारे पैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए दिए जा रहे हैं, you can deny paying that tax because we are supposed to be a secular country. So government cannot forcefully ask you to pay tax for benefit of one particular religion. जनरली अगर रिलीजियस पर्पसेस के लिए मांग रही है तो आपको पे करना पड़ेगा, बट एक रिलीजन पे फोकस करके अगर वो टैक्स मांग रही है तो आप नहीं पे करोगे। ओके। सेकंड, आर्टिकल 28, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या होता है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बेसिकली, कई सारे रिलीजन में ये बोला जाता है कि अगर आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हो तो यू शुड डू दीज थिंग्स। हिंदू हो तो आप हवन करो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप नमाज अदा करो। ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो कई सारे स्कूल्स में ये काफी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, दैट यू आर फोर्स टू प्रे टू जीसस और यू आर फोर्स टू सिट इन हवन्स। ओके। सो क्या अलाउड है ये? आंसर इज यस, अलाउड है, बट गवर्नमेंट स्कूल में ये अलाउड नहीं है। इफ अ स्कूल, अ कॉलेज इज फुल्ली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स, वहां पर अलाउड नहीं है, बट बाकी स्कूल्स में ये अलाउड है। ठीक है। बट स्कूल में अलाउड है इसका मतलब नहीं कि आपको जोर जबरदस्ती करके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में बिठाया जाएगा। ओके। अगर आप कोई स्कूल अटेंड कर रहे हो जो स्कूल स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, फॉर एग्जांपल अफिलिएशन है उसके पास, या फिर उसको स्टेट से पैसा मिल रहा है, तो वहां पर आपको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का पार्ट बनने के लिए। आप आप बोल सकते हो आई डोंट वांट टू टेक पार्ट। इफ यू आर अ माइनर, योर गार्जियन विल गिव द कंसेंट। ओके। यू कैन नॉट बी फोर्स टू टेक पार्ट, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स किसको दी जाती हैं? ये माइनॉरिटीज को दी जाती हैं, और इस पार्ट के अंदर दो तरीके की माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज कल्चर आता है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का राइट आता है आपके पास। ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आर्टिकल 30 अलाउज यू टू ओपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रिजर्व योर माइनॉरिटी कल्चर। लेकिन अगर आप ये खोल रहे हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो आप किसी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू योर रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। ओके। एंड अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को पैसा बांट रही है, okay, so the government cannot discriminate against any educational institution if they are distributing aid to institutions, right? Minority institutions को आप ignore नहीं कर सकते। And the next part is obviously saving clauses. 31A, 31B and 31C are called saving clauses. क्यों? क्योंकि ये कुछ लॉस को, who might be violating fundamental rights, ऐसे लॉस को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैसे लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं? आर्टिकल 31A प्रोटेक्ट्स लॉज which might prescribe for acquisition of property, state, कंपनी। जैसे कई बार होता है ना, गवर्नमेंट फोर्सफुली आपकी जमीन मांगती है, रोड बनाना है। ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास करती है तो आप मना नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं बोल पाओगे दिस इज अगेंस्ट माय फंडामेंटल राइट्स, राइट। सेकंड, अगर गवर्नमेंट कोई कंपनी को प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी बना रही है, ठीक है, नेशनलाइज कर रही है, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था। द केस फॉर बैंक नेशनलाइजेशन इज कॉल्ड आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। सो बैंक नेशनलाइजेशन जब हुआ था तो ऑब्वियसली इट वाज चैलेंज्ड कि तुम बैंक्स को पब्लिक बैंक्स कैसे बना सकते हो, बट दे आर अलाउड, राइट।
31B की जब हम बात करते हैं, 31B अलाउज फॉर लॉज विच आर इन नाइन्थ शेड्यूल, उनको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। नाइन्थ शेड्यूल किस लिए है? नाइन्थ शेड्यूल में लिस्ट ऑफ लॉज है विच वर ब्रॉट फॉर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए बहुत सारे लॉज को लाया गया था। ठीक है, लैंड सीलिंग लगाई जाती है उस पे। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जमीन नहीं ओन कर सकता। अगर उसके पास ज्यादा जमीन है तो गवर्नमेंट छीन लेगी। तो नाइन्थ शेड्यूल में ऐसे लॉज की लिस्ट है। और अगर नाइन्थ शेड्यूल में कोई ऐसा लॉ है तो उन लॉज को आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। 31C इज अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास कर रही है विच इज देयर टू इन्फोर्स डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे लिकर बैन, लिकर बैन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो लिकर बैन के लिए अगर कोई जैसे गुजरात गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट लॉ लाई थी, आप उस लॉ को चैलेंज नहीं कर पाओगे बिकॉज दैट लॉ इज इन्फोर्सिंग अ डीपीएसपी। सिमिलरली अगर उत्तराखंड यूसीसी ला रही है तो आप उस यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 32 विच इज द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं। ओके, अब रिट्स के टाइप, हीबस कॉर्पस इज कॉल्ड यू मे हैव द बॉडी और टू हैव द बॉडी। तो हीबस कॉर्पस इश्यू की जाती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, पुलिस को, कि आप इस इंसान को जो मिसिंग है या भाग रहा है उसको पकड़ के कोर्ट के सामने लाओ। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। Mandamus is issued by the higher courts to government bodies when the government bodies are not performing their functions properly. So, कोर्ट क्या करेगी? कमांड करेगी सुप्रीम कोर्ट की अपना काम प्रॉपरली करो। प्रोहिबिशन इज अगेन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू लोअर कोर्ट्स अगर लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर केसेस एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, और मान लो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम केवल 50 लाख तक के केसेस एक्सेप्ट कर सकती है और उसने कोई 1 करोड़ का केस एक्सेप्ट कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोहिबिट करेगी कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस केस। ठीक है, तुम्हारे पास 50 लाख तक की ही केसेस एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस केस। बट मान लो अगर उस लोअर कोर्ट ने केस एक्सेप्ट भी कर लिया और एक फाइनल ऑर्डर भी पास कर दिया, जजमेंट भी पास कर दिया, तो क्या करेगी हायर कोर्ट? इट विल इशू अ सर्टोररी। सर्टोररी क्या है? इट क्वॉशेस, इट डिलीट्स द इनवैलिड रॉन्गली डिलीवर्ड जजमेंट। बिकॉज उस कंज्यूमर फोरम के पास 50 लाख की केस एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी नहीं थी उससे ऊपर की। उन्होंने 1 करोड़ का केस एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने जजमेंट भी पास कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। एंड लास्ट इज को वारंटो। को वारंटो इज इशूड टू पब्लिक अथॉरिटीज, पीपल होल्डिंग पब्लिक पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर ये डाउट होता है कि दे आर नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड दैट पोस्ट, मे बी एज रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, मे बी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, मे बी द पर्सन हैज नॉट स्कोर्ड एडक्वेट मार्क्स, है ना, घपलेबाजी हुई है, कुछ लोगों को मान लो सस्पेशन है कि घूस देकर उन्होंने सरकारी नौकरी ली है, तो उनको आप को वारंटी इश्यू करते हो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव होल्ड हेल्ड दिस पोस्ट। ठीक है, तुम्हारे पास जब है ही नहीं क्वालिफिकेशंस तो कैसे इस पोस्ट पे बैठे हो? So that's Article 32, right? Let's come to Article 33. कुछ कुछ चीजों के रिगार्ड्स में पार्लियामेंट कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करके छीन सकती है। किससे किससे छीन सकती है? आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर से छीन सकती है। फॉर एग्जांपल, आर्म्ड फोर्सेस के पास राइट टू फ्रीडम इतना फ्रीली नहीं होता, अपने मन से कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी उनके पास नहीं होती, राइट, सब कुछ उनको बताना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो आर्म्ड फोर्सेस के पास सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, है ना। तो आर्म्ड फोर्सेस हो गए, अगर कोई फोर्सेस हैं जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए हैं, ठीक है, कोई पर्सन है, अगर कोई ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी में, रॉ हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल सीबीआई हो गया, ठीक है, तो इन सब के लोगों के कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ले सकती है पार्लियामेंट। और अगर कोई टेलीकॉम में है, ठीक है, किसी फोर्स, किसी ब्यूरो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उनका भी फंडामेंटल राइट्स कम कर सकती है पार्लियामेंट। आर्टिकल 34 इज मार्शल लॉ अगर होते हैं तो वहां पर कुछ कुछ राइट्स लोगों के छिन जाते हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ आफ्सपा।
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का पूरा बेसिस यही है कि क्योंकि वहां मार्शल लॉ लगा है, विच इज रूल ऑफ द आर्मी, तो वहां पर जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स कम हो जाते हैं। और वहां पर अगर कोई पर्सन है जो वहां पे मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के लिए काम कर रहा है, तो उनको पार्लियामेंट किसी भी तरीके के पनिशमेंट से बचा सकती है बाय पासिंग अ लॉ। Okay. And 35 basically gives Parliament power to make laws with regards to Article 32, 33, and 34. So, fundamental rights we are done with. Let's quickly go to directive principles of state policy and let's discuss a couple of important ones. Okay. ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे 39A इज फ्री लीगल एड, ये अमेंडमेंट से आया था, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट one is called, एक second, let me just come to 44, which is the UCC. Please remember Article 44, बहुत important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। नेक्स्ट, लेट्स गो टू 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। ये 47 इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अल्कोहल बैन, लिकर बैन यहां से आता है 47 से। ओके। 48A अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, दिस इज रिगार्डिंग एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 50 बेसिकली सेज कि जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ताकि उनके इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। एंड द लास्ट डीपीएसपी इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट। तो इन सारे लॉज को पास करती है जब स्टेट गवर्नमेंट, तो आप इनको चैलेंज भी नहीं कर सकते, राइट। नाउ लेट्स क्विकली कम टू फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। एज यू नो इट हैज बीन एडेड बाय अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट से पूरा का पूरा पार्ट 4A ऐड हुआ था। and the latest fundamental duty which is obviously regarding right to education, ये साथ में ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट। जब 21A ऐड हुआ था तो हमने इस फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया था। सो यू कैन क्लियरली सी द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 11। The 11th fundamental duty is parent and guardian have to provide opportunity of education for their children if they are between the age of 6 to 14 years. Okay, ठीक है। Now let's quickly go to some of the important parts. For that, I will stop the session right now. I will upload at least this part of YouTube, and then part two may I will continue with the uh, rest of the constitutional posts and constitutional bodies. Right? Thank you for attending. Please go to the next part, which is the part two of the lecture.